Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present 23rd video on the provisions of Constitution of India. In this video we will discuss right to property as available to every person in India. It is provided in Article 300A, which has been inserted in the Constitution by Constitution 44th Amendment Act 1975, which repeals Article 31 and 19F, in which right to property was earlier provided as fundamental right. Okay, मित्रों, इस भारतीय संविधान के 23वें वीडियो में हम लोग संपत्ति के अधिकार पर चर्चा करेंगे, जो कि वर्तमान में भाग 12 के चौथे अध्याय में इन चैप्टर 4th ऑफ 12th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे अध्याय के अनुच्छेद 300A में लिखा हुआ है। ये बहुत छोटा सा आर्टिकल, इट इज वेरी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज ओनली 13 वर्ड्स, केवल 13 शब्दों का यह अनुच्छेद है, जिसे जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1978 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसी संशोधन से संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 में, उसे निश्चित कर दिया गया. इट मींस बाय द अमेंडमेंट एक्ट which was enforced on 20th June 1979. यह संशोधन अधिनियम 20 जून 1979 को लागू हुआ. So by this amendment act, right to property as fundamental right has been repealed from the constitution, and it has been introduced in the constitution, inserted in the constitution as a right to property as constitutional or legal right, but not as a fundamental right. So now in case of encroachment to this right, no one can approach the Supreme Court directly under Article 32 as he could may in case of breach of fundamental right. Okay, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार के अतिक्रमण पर कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता अनुच्छेद 32 के अधीन, जैसा कि जब यह मूल अधिकार था तो वो जा सकता था. सो व्हाट इज द राइट? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13, just 13 words. One of the smallest article of the constitution. किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा. No person shall be deprived from his property save by authority of law. It means a person can be here person, not citizen. So this right is available not only to citizens of India but to persons living in India, whether they are citizen or not. इस प्रकार यह अधिकार पर्सन यानी व्यक्तियों को उपलब्ध है. इस प्रकार केवल सिटीजन को नहीं है, विदेशियों को है, कंपनीज को है, ट्रस्ट को है. ओके, सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. इट मींस कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा. बट nowhere in this article it has been provided that the person must be compensated. The person shall be compensated for the property from what he is being deprived by the authority of law. No, it means it's up to the legislature to provide the person compensation or not. But when right to property was fundamental right, there were 3 restrictions on depriving a person from his property.
First, no person should be deprived from his property other than for public purposes. He must be compensated for the property from which he had been deprived and by authority of law. इस संशोधन अधिनियम से पहले जब इन अनुच्छेदों के तहत यह मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो वहां भी लिखा हुआ था, वहां क्या लिखा हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर अपने संपत्ति से वंचित होगा तो केवल विधि के प्राधिकार से, ऐसा विधि के प्राधिकार से भी केवल लोक प्रयोजनों के लिए ही संपत्ति उससे ली जाएगी। यानी संसद अगर संपत्ति लेगी भी तो लोक प्रयोजनों के लिए, और वो भी कंपनसेशन जरूर किया जाएगा, उस पर्सन को कंपनसेट जरूर किया जाएगा, मुआवजा जरूर दिया जाएगा उस व्यक्ति को। इस प्रकार यह फंडामेंटल राइट था, बट when it was converted into a legal right, just a constitutional right from fundamental right. Now it is a constitutional right, a legal right. Okay, constitutional right, a legal right. वर्तमान में यह केवल एक संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। Then the person who is being deprived from his property has no right to demand for compensation under this article. इस अनुच्छेद के तहत इस तरह से मुआवजा मांगने का अधिकार नहीं है। Just he can claim that he should be deprived, he must be deprived from his property only by authority of law, but not by any other way. वह तो इतना कह सकता है कि उसे केवल विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाए, अन्यथा नहीं। ओनली बाई पार्लियामेंट, ओनली बाई स्टेट लेजिस्लेचर, बट नॉट बाई एग्जीक्यूटिव। बट ही कैन नॉट claim for compensation. But there are two exceptions. In two exceptional situations, the Constitution of India provides that the person or institution or community must be compensated at market value for the property from which he is being deprived. कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, लाइक आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 30 एक को आर्टिकल 31A, अनुच्छेद 30 को में क्या लिखा हुआ है कि कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर प्रॉपर्टी है और उससे उसको डिप्राइव किया जा रहा है, देन ही मस्ट बी कंपनसेटेड एट मार्केट वैल्यू। आर्टिकल 31A, ओके, अनुच्छेद 30 एक को ओके, इट हैज बीन इंसर्टेड बाय 44th Amendment Act 1978. By this Amendment Act, Article 31A has been inserted. It provides as, in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of any educational institution established and administered by a minority, referred to in clause 1 of Article 30, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षण संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि इस खंड के अधीन, खंड 1 के अधीन, अनुच्छेद 30 से खंड 1 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। यानी माइनॉरिटी के द्वारा अंदर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश की गई है और उसकी प्रॉपर्टी का
कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, अनिवार्य अर्जन हो रहा है, देन द कम्युनिटी मस्ट बी कंपनसेटेड एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, बाजार मूल्य पर उसको जरूर किसी हर एक अवस्था में क्या मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 30 इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये उसका मूल अधिकार है। सो इवन आफ्टर रिपीलिंग आर्टिकल 31 and 19F, in case of acquisition of minors educational property, getting compensation would be fundamental right of the community. अगर अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थान की संपत्ति का अर्जन किया जा रहा है, इट मे बी एक्वायर्ड, तो उसका अर्जन किया जा सकता है, किंतु उसे मुआवजा पाने का पूरा मौलिक अधिकार है। ओके, एंड द सेकेंड इज अंडर आर्टिकल 31A, that is 31A clause 1. Okay, in case of the proviso article 1 and in second proviso, परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति के अपने जोत में है, वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को जो कि किसी तत्सम प्रवृत्ति विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, सीलिंग से ज्यादा नहीं है, कम है। एक तो जोत है, एग्रीकल्चरल लैंड है और उस सीमा से कम है, यानी सीलिंग एक्ट में नहीं है, ज्यादा एक्सेस लैंड नहीं है, ठीक है, के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करता है। जहां राज्य अधिकतम जोत सीमा के भीतर जमीन रखने वाले व्यक्ति की कोई जोत अर्जित करता है या उस जोत पर बने किसी घर या मकान की जमीन को अर्जित करता है, उस दशा के सिवा अर्जित करना उस दशा के सिवा विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के समुदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। तो यहां आर्टिकल 31A सब क्लास 1 लास्ट प्रोविजो के अंतिम पैरा में एग्रीकल्चरल लैंड नॉट मोर देन सीलिंग, अधिकतम जोत से ज्यादा नहीं अगर है, उसको एक्वायर किया जा रहा है, उसका अर्जन किया जा रहा है, तो भी बाजार मूल्य पर मुआवजा पाने का अधिकार मौलिक अधिकार, दैट इज फंडामेंटल राइट बिकॉज इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मौलिक अधिकार होगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ दे रहा हूं, आई एम रीडिंग इन इंग्लिश। ओके, दिस प्रोविजो बिफोर क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 31A this is 31A. Okay, 31A last proviso of 31A clause 1 last proviso. Okay, this proviso क्या लिखा हुआ है, provided further that where any law makes any provision for the acquisition of the property of any state and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, agricultural land, it shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable, within the ceiling limit, not more the ceiling limit. Such kind of fundamental right is available only in case of within ceiling limit, applicable to him under any law for the time being in force, or any building or structure standing thereon or appertaining thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof. तो ऐसे में दो जगह पे मुआवजा पाने का मौलिक अधिकार अभी भी है, आर्टिकल 31A क्लास 1 लास्ट प्रोविजो एंड आर्टिकल 31A अनुच्छेद 30(1) क में और अनुच्छेद 31 क के पैरा के क्लास 1 के लास्ट प्रोविजो में दो जगह आज भी फंडामेंटल राइट टू गेट कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्वायर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति से वंचित किए जाने पर मुआवजा पाने का मौलिक अधिकार है, बट नथिंग एल्स, बट नेवर अदर।
ठीक है, अन्यथा कहीं ऐसा अधिकार नहीं है। व्हाट इज द रियल पोजीशन ऑफ right to property right now? Right to property right now is not a fundamental right, because to be fundamental right, a right must be provided in part 3 of Constitution. So it is not a fundamental right, okay, but it is a constitutional right because it has been provided in Constitution, like right to vote, right to contest election. This is a right. This is a constitutional right. So if it is asked to you in an exam that whether it is fundamental right or constitutional right, the answer would be constitutional right. But if it is asked that whether it is a legal right or constitutional, then even the answer would be constitutional right, because all legal rights are legal right, whether it is fundamental right or non-fundamental right, but constitutional right. Even fundamental right is constitutional right, because all rights provided in Constitution is constitutional right. सभी अधिकार जो संविधान में लिखे हुए हैं वो क्या है? संवैधानिक अधिकार है। And all rights in law, either in Constitution or other than Constitution, are legal right. और सभी अधिकार जो संविधान में हो चाहे बाहर, वो सब वैधानिक अधिकार है। So all rights provided in Constitution are constitutional right because it has been provided in Constitution, and as well as it is legal right. तो ये विधिक अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार है। बट द नियरर आंसर इज, द क्लोजर आंसर इज, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो इफ इट इज आस्क्ड टू यू about a right which has been provided in Constitution, that whether the right is a constitutional right or a legal right, then the answer would be it is constitutional right, though it is a legal right, but the nearer answer, the closer answer would be constitutional right. But if it has been provided in part 3 of the Constitution and there is an option as an alternate answer, there is an option fundamental right, then the closer answer, the genuine answer, the rational answer would be it is fundamental right, because all the rights provided in the Constitution are constitutional right, but only those rights which have been laid down in part 3 of the Constitution would be fundamental right. So then the answer would be fundamental. But for right to property, if there are 3 options, nature of right to property is whether it is constitutional right or legal right or fundamental right. It is legal right and constitutional right, but not fundamental right. Okay. Then what would be right to say that is a legal right or constitutional right? The right answer would be constitutional right, because this is closer answer. This is close answer. Legal right may be in Constitution or other than Constitution, but because it is in Constitution, so being legal right is constitutional right. So the nearest answer is constitutional right. यदि आपसे पूछा जाता है कि संवैधानिक अधिकार की प्रकृति क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना होगा कि संपत्ति के अधिकार वर्तमान में संवैधानिक अधिकार। यदि विकल्प में हो जाए कि मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है, तो उत्तर क्या होगा? मौलिक अधिकार तो नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार होने के लिए संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख होना जरूरी है, वहां ये नहीं है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब आते हैं कि संवैधानिक अधिकार है कि वैधानिक अधिकार है। तो सभी अधिकार जो विधि में कहीं भी लिखे हो, चाहे संविधान में भाग 3 में अन्यथा कहीं भी, सबके सब वैधानिक अधिकार है। तो वैधानिक अनुसार लीगल राइट तो एक कॉमन आंसर हो गया। स्पेसिफिक आंसर क्या होगा? Constitutional right, संवैधानिक अधिकार. So the right answer would be constitutional right. But if in the option of the question there is no option of constitutional right, but there are 2 options, it is fundamental right or legal right, then the answer would be legal right. यदि विकल्प के तौर पे केवल 2 ही विकल्प है कि यह वैधानिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है, तो उत्तर क्या होगा कि यह वैधानिक अधिकार है। So right now fundamental right, right to property is not a fundamental right, but it is a legal right provided in Constitution, so it is a constitutional right. Okay? इस प्रकार संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक अधिकार है और संविधान में उल्लिखित होने के नाते संवैधानिक अधिकार है। ओके?
But if up to the limit when the minimum amount of property, what is essential for living a life of human life, according to me, up to that limit, property would be right to those property, right to have property up to limit to live a life. Okay, like clothes, seeds, grains, these are also right. A single house having roof. According to me, this should be amounted as fundamental right under Article 21. Because for living life, every person has fundamental right to live life under Article 21. And for living life, properties are essential. So up to what limit property is essential for living a life, a normal life, according to me, it should be considered as fundamental right under Article 21. मेरे हिसाब से उतनी मात्रा तक संपत्ति जितना किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उसे अनुच्छेद 21 के तहत उतनी संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। क्योंकि अनुच्छेद 21 ये कहता है जीवन जीने का अधिकार देता है। जीवन जीने के अधिकार में कपड़ा का अधिकार, भोजन का अधिकार, घर में रहने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हो जाते हैं। तो इतने के लिए जितनी संपत्ति चाहिए, मेरी समझ जो मिनिमम है, उसे मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए अनुच्छेद 21 के तहत। एज राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार के रूप में हैविंग सच अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी कंसीडर्ड एज फंडामेंटल राइट। उतनी मात्रा तक संपत्ति रखने को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए, और अगर उसे भी छीना जा रहा है, देन इट वुड बी वायलेशन ऑफ, इट वुड बी कंसीडर्ड एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ओके, अगर उसे भी कहीं छीना जा रहा है तो मेरी समझ से उसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए। उसके आगे जो प्रॉपर्टी, जो सरप्लस प्रॉपर्टी है, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय ओन व्यू, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार उसके आगे जो संपत्ति है उसे राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A माना जाना चाहिए। तो मैंने संपत्ति को मात्रा के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर दो वर्गों में बांट दिया। वह न्यूनतम मात्रा जो जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जरूरी है, संपत्ति की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक है, मेरी समझ से वह संपत्ति के अधिकार में नहीं है, बल्कि वह मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 की विषय वस्तु है। और यदि किसी व्यक्ति को उससे वंचित किया जा रहा है तो मेरी समझ से वह अनुच्छेद 21 के अधीन उसके मूल अधिकार का अतिक्रमण है, और वहां वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है सीधे अनुच्छेद 32 के तहत, और उसे वो सारे प्रोटेक्शन और उपचार मिलने चाहिए, संरक्षण और उपचार मिलना चाहिए जो किसी मौलिक अधिकार के भंग पर मिलता है। All protections and reliefs should be available to him what are available in case of violation of encroachment of fundamental right under part 3 of Constitution। लेकिन जो उससे ज्यादा प्रॉपर्टी है उसे हम संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत माने। इट इज माई ओन क्लासिफिकेशन, माई ओन व्यू। ओके, ये मेरा अपना विचार है और मेरे अपने संकल्पनाएं हैं। ओके, then now what is the position of right to property? It is a constitutional right, it is a valid right, but legal right, but not a fundamental right। यह संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, किंतु मूल अधिकार नहीं है। इसके बारे में चर्चा की गई है जीलू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1999 सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 300A एंड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 44th Amendment Act 1978 as in case of Jeenu Bhai versus State of Gujarat 1995, not 1999, 1995 Supreme Court as इस प्रकार से प्रभाव बताया है। The right to property is not a fundamental right, hence a person cannot move the Supreme Court under Article 32 for its enforcement। इस प्रकार आज के समय में मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार इसके अतिक्रमण पर या इसके प्रवर्तन के लिए कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।
No one can knock doors of Supreme Court directly under Article 32. The second thing is, a person may be deprived of his property only by valid law. Okay, only by law, but not by executive orders. आज के समय में भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से केवल विधि के प्रभाव से वंचित होगा, केवल विधायिका के द्वारा बनाए गए अधिनियम से वंचित होगा, अन्यथा नहीं होगा. A person cannot be deprived of his property merely by an executive order. Executive order. ठीक है. The state may act only in a manner known to law. राज्य अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करेगा तो केवल उसी प्रक्रिया से करेगा जो अधिनियम बना के विधायिका, चाहे संसद ने या राज्य विधानमंडल ने लिखी हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रिपीट की थी. सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेड द व्यू इन केस ऑफ मेघमाला वर्सेस जी नरसिम्हा रेड्डी 2010. What has been repeated by Supreme Court? That the state may act, state may deprive a person from his property only in a manner known to law, only in a manner established by law. केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी को वंचित कर सकता है, but not otherwise. Okay. The fourth position is, if the law deprives a person of his property without payment of any compensation, he shall have no remedy in law. It means no person has right to get compensation as right to property under Article 300A. कोई व्यक्ति जिसे राज्य विधि के द्वारा वंचित कर रहा है संपत्ति से, वह मुआवजे की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि संपत्ति से वंचित न होने के अधिकार में मुआवजा का अधिकार नहीं है. सिर्फ इतना अधिकार है कि संपत्ति से केवल विधि से वंचित होगा, अन्यथा नहीं. ओके. एक्सेप्ट Article 31A and Article 31A Clause 1 लास्ट प्रोविजन. ठीक है, जिसको मैंने पहले ही चर्चा कर दी. केवल अनुच्छेद 30(1) को और अनुच्छेद 31 को उपखंड 1 के पहले अंतिम परंतु को छोड़कर कहीं भी मुआवजा पाने का अधिकार नहीं है. ओके. The right to property is a legal right. It may also be called as constitutional right, but it is not fundamental right or basic essential of the Constitution. Supreme Court clarified it that right to property is not fundamental right. कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है. It is just a legal right or constitutional right. यह संविधान में उल्लिखित केवल एक वैधानिक अधिकार है. इस प्रकार यह संवैधानिक अधिकार है. The right is available to all persons. It is not reserved to citizens. यह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, न कि केवल नागरिकों. ओके. तो इस प्रकार आपने देख लिया. वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से हियर दैट जस्ट आफ्टर enforcement of constitution, our constitution makers found that they have made a fault in constitution, providing property right to property as fundamental right without abolishing जमींदारी सिस्टम in India. जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलित किए बगैर ही हमारे संविधान निर्माताओं से एक गलती हो गई कि उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया. If right to property as fundamental right had not been curtailed by several amendments like First Amendment Act 1951, 7th Amendment Act, 25th Amendment Act and 44th Amendment Act. By several amendment acts, fundamental right to property as fundamental right have been curtailed, have been restricted. Okay, to erase the fault made by our constitution makers. Without abolishing, without distribution of land among the Indians, our constitution makers had declared right to property as fundamental right. It would be beneficial for zamindars, for landlords, for riyasatdars, but not for common people of India. So why, just after enforcement of constitution, right to property as fundamental right as it was provided in Article 31 and Article 19F was started to be curtailed by several amendments. Okay,
जैसे ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ, संविधान निर्माताओं को अपनी भूल का अंदाजा लग गया। क्या भूल कर दी थी उन लोगों ने? देश में अंग्रेजों के जमाने में जमींदारी व्यवस्था थी और संपत्तियां सेंट्रलाइज्ड थी, केंद्रित थी, और बिना संपत्ति के वितरण के, बिना जमींदारी व्यवस्था समाप्त किए ही उन लोगों ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। इससे क्या हो गया? जमींदारों की शक्तियां बढ़ गई। यही कारण था कि जैसे उनको अपनी भूल पता चलती है, पहले संविधान संशोधन के जरिए, इवन व्हेन द फॉर्मर पार्लियामेंट हैज नॉट बीन फॉर्म्ड, it was the constituent assembly which was acting as interim parliament for India, passed the first amendment in the constitution and inserted article 31A and 31B, including 9th schedule in the constitution. It was the constituent assembly itself which was acted as interim parliament. संविधान सभा ही अंतरिम संसद के तौर पे काम कर रही थी। दो इट वाज डिसॉल्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, बट इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रनिंग as interim parliament in India, and the first amendment in constitution has been made by that interim parliament, okay, which has passed, which has made the constitution of India in capacity of constituent assembly of India. भारत की संविधान सभा ही भारत का संविधान लागू होने के बाद से और उसके पहले से भी भारत की संविधान सभा दो रूप में काम करती थी। वो भारत के अंतरिम संसद का भी कार्य कर रही थी और संविधान बनाने का भी। संविधान बन जाने पर जस्ट आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड ऑन 26 नवंबर 1949। संविधान पारित होते ही 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा विघटित कर दी गई थी। बट इट वाज एक्टेड एज इंटरिम पार्लियामेंट फॉर इंडिया टिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मल पार्लियामेंट फॉर इंडिया इन 1952। 1952 में संसद, औपचारिक संसद के गठन तक, चुनाव हो जाने तक भारत की वह संविधान सभा भले संविधान सभा के रूप में विघटित हो गई थी, लेकिन अंतरिम संसद के रूप में वही कार्य कर रही थी। और भारत के संविधान में पहला संशोधन जो किया गया, थ्रू विच फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन कर्टेल्ड, जिसके जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जो लिख दिया गया, तो उसे सीमित किया गया, उसे काटा छाटा गया। वो पहला संविधान संशोधन और भारत की संविधान सभा जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रहे थे उसने ही किया था। Why this amendment has been made, has been passed? Because a fault has been made by constitution maker. क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं से एक बड़ी भारी गलती हो गई थी। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किए बगैर ही उन लोगों ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया था। So now it has been clarified by several amendments that right to property is not a fundamental right, it is just a legal right, constitutional right. Okay, thank you. इस प्रकार तमाम संशोधनों के जरिए साबित हो चुका है और स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। धन्यवाद।